اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ میں خضر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے نوازیں ہمیں، اور پھر ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ خضر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں تھوڑا سا ٹھیک کر دوں گی کہ یہ ہماری جو تقریب ہے آج کی، یہ ایک غیر رسمی تقریب ہے، جسٹ گیٹ ٹوگیدر ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کچھ پروٹوکول کا یا کچھ اس طرح کا ہوگا تو میں پیشگی معذرت کا ہوں۔ تو میں اندر اجازت چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے اس محفل کے صدر ہیں جناب انجم دارا صاحب، ٹیکسلا میوزیم کے ڈائریکٹر ہیں، تو ہماری درخواست پہ یہ آئے کہ عزت بخش ہیں، اللہ پاک ان کو قائم یاد رکھے۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ اپنے خیالات پہ رکھنے والے میرا خیال ہے مائک پہ تسی بچائی پاتا بندے کو نہیں کوئی گل تے اس طرح نہیں ہو سکتی۔ چلو کر لو تسی ویسے گل کرو بس۔ ہاں جی خیالات کا اظہار تو جی میں تقریباً 2 سال سے ادھر ہوں ٹیکسلا میوزیم میں۔ میرا زیادہ ٹائم لاہور گزرا ہے، کراچی بھی اور بھی رہا ہوں، ٹی وی ایس میں بھی رہا ہوں۔ تو ابھی میری پوسٹنگ چونکہ ادھر ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں سے حساب سے تو میرا کمیونٹی میں اتنا نہیں ہے، نکلنا آنا جانا ذرا نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر عمر صاحب کا ہوتا تھا تو اس میں لوگ کے پاس آج کل وہ لوگ کے پاس جانے کا پتا تھا، تو اس میں بھی میرا اس وقت نہیں اس میں تھا کہ میرا سبجیکٹ تھا کہ اگر تعارف کرانا تھی تو نہیں وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹائم تھوڑا ہے نا۔ پنجابی کرو اب بھی غلط مائک کر لو ذرا آواز دور بھی چلی جائے نا۔ چلو صحیح چلو ٹھیک۔ تو اس میں یہ تھا کہ گندھارا کے گلگت کا اوراق ریجن ہے، مجھ سے زیادہ آپ اس زمین کو سمجھتے ہیں۔ تو اس میں جو اصل گندھارا کا جو تھیم ہے، جو گندھارا کے میننگ تھے اور جس پہ کام ہونا چاہیے تھا، اس پہ کام ابھی کچھ نہیں ہے۔ انگریزوں نے کام کیا جو جان ماسٹر کر گئے، اس کے بعد کوئی باقاعدہ ریسرچ جو ہے نا اس خطے پہ نہیں، بلکہ ریسرچ کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ریسرچ جو ہے نا وہ کسی لیول پہ جا کے کچھ چیزیں ایکسپوز کرتی ہے، تو وہ جو سرٹن ایک قسم کے پہلے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، اس لیے ریسرچ جو ہے نا وہ ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ گندھارا جو لفظ ہے نا یہ عرف عام میں یہ چلتا ہے کہ یہ گند سے ہے، گند خوشبو، گند خوشبو لگانے والی، تو یہ فریگرنس کی ویلیو ہے، وادی خوشبو کی وادی ہے۔ لیکن گندھارا کا جو لٹل میننگ ہے جس پہ آج تک کسی بندے نے نہ کبھی کسی فورم پہ بات کی ہے، یہ ایک ایسی کمیونٹی کا نام تھا، ایک ایسا کمپوننٹ تھا جو میوزک سے ریلیٹڈ۔ آج بھی سارے گاما کا جو گاہ تھا نا، گاہ وہ گندھار ہے، گندھار ہے نا، نکھات پنچم رکھب، اور تو گندھار کا جو ریجن ہے وہ اگر آپ اس کے ریجن کو تھوڑا سا کریں نا، ٹیکسلا سے زیادہ ایک اہم سائٹ تھی جس کو لوکل لوگوں کو بھی نہیں پتا، وہ کلاوا سائٹ ہے۔ کلاوا جو سائٹ ہے وہ اتنی رچ ہے ہیریٹیج میں کہ وہاں پہ 3-4 کوئی، لیکن ڈپارٹمنٹ نے، یہ میری غلطی ہے سر، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، درخت بڑے پڑے ہیں، گراس بڑا پڑا ہے۔ کلاوا ایک ایسی کمیونٹی تھی جس کے رہنے والے کلاونتی کہلاتے ہیں،
कलावंत का जो लफ्ज़ है ना, जो क्लासिकल आर्ट में बोला जाता है, जो साउथ इंडिया में बोला जाता है, कलावंत या कलावंती, वो बेसिकली कलावा के रहने वाले, यानी कि इसका टिपिकल क्लासिकल म्यूजिक है। फिर ये जो बीडमंड है, बीड जो है ना वो नगारे को कहते हैं। बीडमंड बेसिकली उस जगह पे बड़े बड़े नगार, जिस तरह सेवन शरीफ में जो है नगारा बड़े बड़े, ये डॉल बड़े बड़े नौबत जिसको कहते हैं, ये बेसिकली ऐसी जगह थी जहाँ पे बड़ी बड़ी नौबत थी। तो ये बेसिकली ये सारा जो कम्युनिटी आज आप अभी आप बात कर रहे थे, उससे बहुत सारे लोगों ने पहले भी बात की है। एक दो दफ़ा मैं सलाउद्दीन साहब के साथ बैठा हूँ, वो जो तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा म्यूजिक से थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, आज म्यूजिक तो है ही, हिस्ट्री में है ही। उन्होंने कहा जी आप आएगा। इस तरह ना 8-10 बंदे ऐसे बैठे हुए, वो एक वर्कशा प्लाजा था, उसमें हम बैठे रात के वक्त। मैंने अच्छा ऐसे जैसे आप लोग बैठे हुए, वाजा पड़ा हुआ है हारमोनियम। अच्छा मेरा ख्याल, अच्छा मुझे लगा कि ये भी बंदा कर रहा है, लेकिन अंदर की जो बात है, मैंने कहा सलाउद्दीन साहब ने तो बंदा कोई नहीं है। अच्छा सलाउद्दीन साहब खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे आपको सुने की हारमोनियम बहुत अच्छा करते हैं। अगर उन्होंने शुरू किया तो बाद में ये साहब जाएंगे, ये साहब जाएंगे। अच्छा मैं जिनको समझ सकता ना कि मंडी में ऐड करने वाले लोग यकीन करें, इतना खूबसूरत उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया। ये उसी चीज़ की जो है ना वो जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इस इलाके में जितना म्यूजिक हुआ, संगीत हुआ, ये इस इलाके के लोगों के जीन्स में है। तो अहमद हसन दानी ने गंधारा ग्रेव कल्चर के ऊपर बड़ी बड़ी बात की। हर कहने की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उसके आम में नहीं है, और ये चीज़ें लोगों को इंफॉर्मेशन में आनी चाहिए। ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, जो रिसर्च के एलिमेंट है, ये नहीं है। तो वो जैसे जॉन मार्शल का दूसरा नाम है अहमद बिन सिद्दीकी, उनके राइट हैंड थे आपके दादा, उनकी तस्वीर लगी हुई है फैसला म्यूजियम में। उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। सर जॉन मार्शल ने ज़िंदगी के 50 साल फैसला में, ना सिर्फ फैसला में, पूरे हिंदुस्तान में। तो उन्होंने म्यूजियम कम अज़ कम 15-20 म्यूजियम जॉन मार्शल की लाइफ तक बन गए। तो उसके नाम की कोई एक जगह नहीं है, कोई एक सड़क नहीं है, कोई एक बिल्डिंग नहीं है, कोई स्कूल का नाम नहीं है उसका नाम। तो हम चीज़ों को ऐसे इग्नोर करते हैं कि वो नहीं है ना, वो लोग आसान किया उन्होंने। तो एक बंदा लंदन से उठ के आया, ये काम कर रहे हैं, तो हमको उनको याद रखना चाहिए। उनका कोई ना कोई फेस्टिवल कराए, उनका कोई ना कोई उनकी याद में कोई म्यूजियम के कोई हिस्से का नाम उनके साथ जी। तो 2 मेज़ रखते हैं, 2 कुर्सियाँ रख के लिए जॉन मार्शल ये कुर्सियाँ से यार, इसको ज़्यादा जॉन मार्शल है। तो ये चीज़ें बहुत कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना है, और इन चीज़ों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, और बैठ के अपने कल्चर के सोशल सोसाइटीज़ के जो इश्यूज़ हैं टू प्रमोट एंड टू प्रिजर्व योर हेरिटेज, इस पर आप लोगों को काम करना चाहिए, और आप कर भी रहेंगे जी इंशाल्लाह। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे थोड़ा सा अपना तारुफ हो जाए। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत अच्छी स्टाफ को सर्व किया हुआ है अमेरिकन एम्बेसी। 2 किताबें इनकी आ चुकी हैं, और तीसरी के लिए पढ़ तोल रही हैं। बस मुझे इनसे एक शिकायत है कि बहुत तेज़ दौड़ रही हैं, अपनी रफ्तार जो है वो ज़रा आहिस्ता रखें, मोहतात और आहिस्ता। और बाकी शायरी हम इनसे सुनेंगे, बहुत खूबसूरत, और वाह और टेक्सला की शान। अगर शायरा के क्या बात होती है कि शायरात की, तो आपको मैं अब वो लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा शायरात के हवाले से, तो मेरा ही एक शेर है कि इन दिनों शेर में भी शोबदाबाजी है बहुत, इन दिनों शेर में भी शोबदाबाजी है बहुत, बाज तो औरों की खिदमत भी ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
जो कहती हैं अपना कहती हैं, और इनका बड़ापन है कि जब भी इन्हें कोई महसूस होता है, ज़ाहिर सीखने का अमल आज तक कायम है। हम अब एक दूसरे को अभी भी दिखा लेते हैं। आरिफ ख़याम राव हमारे इस एजाज़ है, हमारा दियारे अदब टैक्सला का एजाज़, बहुत खूबसूरत शायर हैं। तो इन ये जानते हैं, हम एक दूसरे को दिखाते हैं। और इनकी भी सबसे बड़ी खूबी ये है कि किसी जगह पे भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, ये फ़ौरन कॉल करते हैं कि ये देखे मैंने ये मिसरा कहा है, ये लफ्ज़ लगाया, क्या ये दुरुस्त है? जो उस्ताद होता है उसका सफ़र ख़त्म हो चुका होता है, जो तालिबे इल्म होता है वो जारी होता है। 200 स्कोर पे आउट हुआ प्लेयर इतना अहम नहीं होता जो 5 स्कोर पे खेल रहा है। बस ये बाकी इनकी शायरी आप अब सुनेंगे तो आपकी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील अशरफ कुरैशी मेरा नाम है जी, और ताल्लुक़ मेरा आबले थे वो जो आबले थे दरून दिल तेरी कज रवि से उबल पड़े। मुझे कर न दे कहीं दर बदर मेरे बामो दर की ये वहशतें। मुझे कर न दे कहीं दर बदर मेरे बामो दर की ये वहशतें। कभी यूं भी हो कि तू आए तो मेरी खलवतों में खलल पड़े। बहुत शुक्रिया। तेरी जुस्तजू सरे शाम पर मुझे ले गई तेरे दर तलक। तेरी जुस्तजू सरे शाम पर मैं पलट गई मेरे रूबरू जो तेरी जबीन पे बल पड़े। मैं ये जिम्मेदारी ना गल करांगा। मैं अपनी जिंदगी च ऐसा शायर नहीं देखा जिन्हें तर्जुमा तखलीक दे मुकाबले का किया। बस सिर्फ सूफी तबस्सुम सूफी तबस्सुम में तर्जुमा की गालब भी नजर रखी। बाबर इंतजार दिया बहाना जुई मबाशो सतीला कार दिया। एक गजल है फारसी में, बाकी ने भी किया ऐसे बैर से इतनी रखी, लेकिन सूफी तबस्सुम का कमाल किया उन्हें बैर को डबल कर दिया। देखो ना, जमन गरत ना बुअत बाबर इंतजार दिया हो गया मेरे शौक दा नहीं एतबार आजा वेख मेरा इंतजार आजा। उन्हें सियाना बड़ा सियाना सी, उन्हें कहा थोड़ी इतनी जी लाइन जना गालिब नहीं समझदा, उन्हें बैर अपनी बना जो आज देख लो सतीदाकार क्या लड़ाका जा से बात करनी थी। मैं दावत दूंगा आरिफ ख़याम राव साहब को